Hello students, we are seeing class 8 science chapter number 2, that is microorganisms, friend and foe. Okay, in previous videos we have covered a part on microorganism. What is the meaning of microorganism? Okay, what are different examples of microorganism, what are different types of microorganisms, okay, and what are characteristics of different microorganisms. This part we have covered in the previous video. Okay, in next video we have covered this part, that is some microorganisms are friendly. We have studied about harmless microorganisms, harmless microbes, बराबर है ना. We have studied uses of microbes. We have studied uses of microbes. अगर आपको याद है तो microbes are used in making bread. Microbes are used in making cakes. They are used in making alcohol. They are used in making perfumes, fuels, okay, wines. Then they are used in making medicines, and they are used in making what? Vaccines. They are used in making what we say, keeping environment clean environment. They are used in making fertilizers also. These much uses of microbes we have seen. Okay, now we are going to focus on the foe part. Foe means what? Foe means enemy. In this video we are going to focus on harmful microbes. Okay, हमें इस वीडियो में क्या देखना है? वी आर गोइंग टू फोकस ऑन हार्मफुल माइक्रोब्स. माइक्रोब जो हमें क्या है? हार्मफुल है. माइक्रोब जो हमारे लिए क्या है? हार्मफुल है. दैट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस video, harmful microbes. Okay, now see, microbes can be harmful in many ways. In many ways. What are they? Okay, we will see that some microbes are disease causing. Some microbes are डिसीज कॉजिंग. ऐसे कुछ माइक्रोब्स है जिनके वजह से आपको क्या होती है? अलग अलग डिसीजेस होती है. सम माइक्रोब्स आर डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स. डिसीजेस आर कॉज्ड इन ह्यूमंस, इन प्लांट्स as well as in animals. Actually human also comes in the category of animals, लेकिन हम human diseases को ज़्यादा deep में देखने वाले हैं. That is why we have divided it into 3 categories. Diseases caused by microbes, they are of 3 types. Means we have divided it into 3 categories. Diseases caused in human, diseases caused in plants and diseases caused in animals. Okay, इसके बाद में जो next हम देखने वाले हैं, that is means first harmful effect of microbes is disease causing. Second is spoilage of food. Spoilage of food मतलब harmful microbes क्या करते हैं? आपके फूड को स्पॉइल करते हैं. फूड जो आप स्टोर करते हो, बराबर है ना, वो स्टोरेज के ड्यूरेशन में क्या होता है? खराब हो जाता है. अगर उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ हुई तो वो जो फूड आइटम है वो क्या होता है? खराब हो जाता है. दैट इज स्पॉइलेज ऑफ फूड बिकॉज ऑफ माइक्रोब्स. सो दिस 2 हार्मफुल इफेक्ट्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस लेसन. ओके, सो वी विल मूव टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स. सी, डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स. डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स. अभी when a microbe, we are talking about harmful microbe,
when a harmful microbe enter the body of a living organism, it performs some activities which causes diseases in that organism. It causes diseases in that organism. Okay, such disease causing microorganisms are called pathogens. जो माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद में हमें अलग अलग तरह के डिसीजेस होते हैं, हमें होते हैं, ऐसे माइक्रोब्स जो है उन्हें बोला जाता है पैथोजेंस. उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं. व्हेन ए हार्मफुल माइक्रोब एंटर द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट कॉज डिसीजेस इन दैट ऑर्गेनिज्म. सच डिसीजेस आर कॉल्ड पैथोजेंस. अभी पैथोजन कैटेगरी में देखो कौन कौन आता है. हमें माइक्रोब्स के टाइप्स पता है. माइक्रोब्स में प्रोटोजोआ थे, बैक्टीरिया थे, फंगस थे, उसके बाद में कौन था? अलगी था और वायरस. ओके, ये 5 तरह के माइक्रोब्स हमें पता है. इनमें से एक अलगी, ये जो कैटेगरी है ये कैसी है? ऑटोट्रॉफिक है. ऑटोट्रॉफिक है, खुद का फूड खुद बनाती है, ये दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहती. तो ये जो कैटेगरी है ये पैरासाइट नहीं है, पैरासिटिक नहीं है, ये दूसरे पे डिपेंड नहीं है. दैट इज वाई इट इज नॉट हार्मफुल. ओके, तो पैथोजन कैटेगरी में अलगी नहीं आएगा. इसमें कौन कौन आ सकते हैं? इसमें प्रोटोजोआ आएगा, है ना, इसमें बैक्टीरिया आएगा, इसमें फंगस आएगा, फंगल इन्फेक्शंस होते हैं ना, और वायरसेस आएंगे. ठीक है ना. तो ये जो 4 है पैथोजन कैटेगरी में, आपको जो माइक्रोब्स मिलते हैं वो या तो प्रोटोजोआ टाइप के होते हैं, या बैक्टीरिया होते हैं, या फंगस होता है, या वायरसेस होते हैं. ओके, सो दीज आर पैथोजेंस. ओके, नेक्स्ट हमें देखना है कम्युनिकेबल डिसीजेस. कम्युनिकेबल डिसीजेस. अभी कम्युनिकेबल डिसीजेस मतलब क्या है? जो कम्युनिकेट होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ. ओके, ए disease that is transferred from an infected person to a healthy person through air, water, food or direct contact. A disease that is transferred from an infected person to a healthy person through air, water or food or direct contact is called communicable diseases. Communicable disease is called communicable disease. And a microbial disease, a microbial मतलब माइक्रोब के वजह से होने वाले डिसीज is always communicable. Okay, a microbial disease is always communicable. Communicable मतलब जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर होती है. ऐसी डिसीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को ट्रांसफर होती है, ऐसे डिसीज को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं. ओके, एंड कम्युनिकेबल डिसीजेस आर ट्रांसफर्ड थ्रू व्हाट? दे आर ट्रांसफर्ड थ्रू एयर, वाटर, फूड और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. एयर, वाटर, फूड और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. जैसे कि आप अगर इमेजिन करोगे कि मतलब आपके क्लास में अगर किसी एक पर्सन को कोल्ड हुआ है, सर्दी हुई है, तो उसकी सर्दी क्या होती है? उसके बाद में दूसरे दिन और 3-4 लोगों को आपके क्लास में की सर्दी हो सकती है. बराबर है ना. तो ये कोल्ड जो है, कॉमन कोल्ड, उसे फ्लू भी बोला जाता है. दैट इज ए कम्युनिकेबल डिसीज. जो इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, लेकिन एक कम्युनिकेबल डिसीज, पैंडेमिक बोलते हैं हम उसको, हाँ, महामारी. अभी बहुत तेज़ी से उसकी ग्रोथ हो रही है
आप देखते हो पहले दिन अगर एक पेशेंट है तो दूसरे दिन 2 होते हैं, तीसरे दिन 4 होते हैं, चौथे दिन 8 होते हैं। ये जो कम्युनिकेबल डिसीज अभी हमारे सराउंडिंग में फैल रही है उसका नाम क्या है? COVID-19. This is a communicable disease. It is a communicable disease which is also a microbial disease. काय के वजह से होती है ये डिसीज? माइक्रोबियल डिसीज, माइक्रोब्स के वजह से होती है। और इसका पैथोजन कौन है? पैथोजन है इसका कोरोना वायरस। ओके, ये वायरस के वजह से होने वाली क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज है, ठीक है ना। तो ये डिसीज किस वे से फैलती है? हमारे पास 4 ऑप्शन हमने देखे, एयर, वाटर, फूड या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। कोविड-19 ये डिसीज किस वे से फैलती है? एयर से फैलती है क्या? नहीं, इट स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। उसके जो वायरसेस है वो हेवी है और ये हेवी होने के वजह से ये एयर में फ्लोट नहीं कर सकते। अगर एयर में किसी ने स्नीज किया तो वो एयर में एंटर तो होंगे लेकिन वो हेवी होने की वजह से वो सेटल डाउन होते हैं। तो जो चीज़ आपके सराउंडिंग में है वो चीज़ में ये क्या होती है? सेटल डाउन होती है। अगर आपका डायरेक्ट वो कांटेक्ट आता है वो पर्सन के साथ में या उसने टच किए हुए किसी भी चीज़ के साथ में, तो वो उसके वायरसेस आपके हाथों पे चिपक जाते हैं और वही हाथ आपका मुंह को नाक को गया तो आपको भी वो डिसीज क्या हो सकती है? हो सकती है। तो दिस डिसीज इज ट्रांसफर्ड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। ओके, सो ऐसे और कौन से कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं? एग्जाम्पल नंबर 1 कॉमन कोल्ड, नंबर 2 चिकन पॉक्स, डेंगू, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्यूलोसिस, उसके बाद में स्वाइन फ्लू, रिंगवॉर्म, okay, etc. These all are diseases that are spread from one person to another person. They either transfer, एक वाटर से ट्रांसफर होने वाली डिसीज भी हम ले लेते हैं यहाँ पे, जॉन्डिस। ओके, these diseases are communicable diseases. Okay, now next point, how communicable diseases are spread. हाउ कम्युनिकेबल डिसीजेस आर स्प्रेड। कौन कौन से मीडिया है स्प्रेड के? मैंने आपको बताया एयर। कुछ डिसीजेस ऐसे हैं जो एयर से स्प्रेड होते हैं। एयर से स्प्रेड होने वाले डिसीजेस में कौन कौन आता है? इसमें आएगा कॉमन कोल्ड। ओके, इसके बाद में कॉमन कोल्ड के बाद में इसमें कौन कौन आता है? डेंगू, नहीं डेंगू इसमें नहीं आता है, सॉरी। कॉमन कोल्ड आता है, इसके बाद में टीबी इसमें आता है। टीबी के जो वायरसेस है ये काय में से स्प्रेड होते हैं? एयर में से स्प्रेड होते हैं। ओके, इसके बाद में वाटर में से स्प्रेड होने वाले डिसीजेस कौन से हैं? वाटर में से स्प्रेड होने वाले डिसीजेस है, मैंने डेंगू इसलिए लिया क्योंकि इसके मॉस्किटोज एयर में से ट्रैवल करते हैं, लेकिन उसको हम एयर में से ट्रैवल होने वाले डिसीजेस नहीं बोल सकते। वाटर में से कौन से डिसीजेस स्प्रेड होते हैं? जॉन्डिस, कॉलेरा, हेपेटाइटिस, ओके, और जॉन्डिस, कॉलेरा, हेपेटाइटिस, डिसेंट्री। दिस डिसीजेस आर स्प्रेड थ्रू वाटर। उसके बाद में कौन है नेक्स्ट? एयर, वाटर और फूड। फूड में से स्प्रेड होने वाले डिसीजेस कौन से हैं? फूड पॉइजनिंग, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से इसमें भी टीबी आता है, इसके साथ साथ इसमें और कौन आता है? टीबी के साथ साथ जो रिंगवॉर्म है, खुजली वाले डिसीजेस, स्किन रिलेटेड डिसीजेस, ये डिसीजेस आते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट में। ठीक है, इसके बाद में कुछ डिसीजेस ऐसे हैं जो कैरियर्स के थ्रू स्प्रेड होते हैं। कैरियर्स मतलब क्या? कैरियर्स में आते हैं जिनके पैरों को
या हाथ को या उनके बॉडी के ऊपर, बॉडी के अंदर पैथोजेंस रहते हैं, ऐसे इंसेक्ट्स को बोला जाता है कैरियर्स। ऐसे इंसेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? कैरियर्स बोलते हैं। व्हाट आर कैरियर्स? कैरियर्स आर सम इंसेक्ट्स और एनिमल्स विच कैरी पैथोजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिसीज। वो एनिमल को या वो इंसेक्ट को ये डिसीज नहीं होगा, लेकिन वो कैरी करेगा, और वो जब दूसरे किसी पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो फिर उस पर्सन को वो पर्टिकुलर डिसीज क्या होती है, उसको लगती है। ओके, तो ऐसे कैरियर्स में कौन कौन आता है? हाउस फ्लाइज आते हैं, उसके बाद में एनिमल्स आते हैं, उसके बाद में सम ऑफ दी क्या बोलेंगे हम उसको, इंसेक्ट्स, और जो इंसेक्ट्स है आपके पास में उनसे, और मॉस्किटोज से। अभी ये जो हाउस फ्लाइज है ये सारे गार्बेज पे बैठती है। गार्बेज में जितने भी माइक्रोब्स या जर्म्स है इनके पैरों को चिपक सकते हैं, और इसके वजह से इनको क्या हो सकते हैं, इनके, और फिर ये जाके आपके फूड पे बैठेंगे, तो इसके वजह से आपको क्या हो सकती है, डिसीजेस हो सकते हैं, अलग अलग डिसीजेस। इंसेक्ट्स, इसमें कई सारे, जैसे एनिमल की बॉडी पे भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे हाउस फ्लाइज है वैसे कॉकरोचेस है ना, इनसे भी आपको क्या हो सकते हैं, अलग अलग डिसीजेस हो सकते हैं। एनिमल्स जो है, फॉर एग्जांपल डॉग्स है, कैट्स है, इनसे भी आपको अलग अलग डिसीजेस हो सकते हैं। ये भी किसी डिसीजेस के वायरसेस या जर्म्स क्या करते हैं, कैरी करते हैं। इसमें एक इसका जाना पहचाना एग्जाम्पल यानी कि रेबीज इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिया। कुत्ते के काटने के वजह से होता है, कुत्ता बिल्ली कोई भी काटे तो वो इंसान को रेबीज होने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एनिमल्स है दे आर कैरियर्स ऑफ रेबीज। मॉस्किटो हमें पता है, मॉस्किटो में एनोफिलस, ये जो फीमेल मॉस्किटो है एनोफिलस, इट कैरीज प्लाज्मोडियम नाम का एक जो जर्म है, माइक्रोब है, पैथोजन है, ये एनोफिलस के बाइट में प्रेजेंट होता है, और ये पर्टिकुलर जर्म के वजह से आपको हो सकती है डिसीज मलेरिया डिसीज होती है। इन द सेम मैनर एडिस नाम का जो फीमेल मॉस्किटो है, दिस इज ऑल्सो फीमेल। जो भी खून चूसने वाले मॉस्किटोज होते हैं ना, जनरली मेल मॉस्किटोज खून नहीं चूसते, जो फीमेल मॉस्किटोज होते हैं वही खून चूसते हैं। मतलब आपके ब्लड के ऊपर वो डिपेंड होते हैं, क्योंकि उनके बॉडी में रिप्रोडक्शन के सिस्टम के लिए जो प्रोटीन्स चाहिए वो उन्हें आपके ब्लड में से मिलते हैं। तो एडिस ये जो फीमेल है उसके बाइट में डेंगू के जर्म्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मॉस्किटोज दे आर ऑल्सो कैरियर ऑफ डिसीजेस। ओके, सो डेंगू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू, ये सारी की सारी डिसीजेस जो है आपको काय में से हो सकती है, मॉस्किटोज के बाइट के वजह से हो सकती है। ठीक है, सो दीज आर हाउ कम्युनिकेबल डिसीजेस आर स्प्रेड। दे आर स्प्रेड थ्रू व्हाट? दे आर स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, फूड, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और कैरियर्स। इनके थ्रू ये डिसीजेस क्या होती है, पर्सन को ट्रांसफर होती है। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज वी विल सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिसीजेस। नाउ अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे डिसीजेस के जो आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में मेंशन किए हुए हैं। दैट एग्जाम्पल्स वी आर गोइंग टू सी नाउ। ओके, व्हाट आर दे? सी, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन ह्यूमन डिसीजेस नाउ। ह्यूमन डिसीजेस, कुछ डिसीजेस मैं आपको बता रही हूँ। ओके, पहली डिसीज है इसमें कि टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस इज स्प्रेड बाय बैक्टीरिया एंड दे आर स्प्रेड थ्रू एयर। एयर के थ्रू स्प्रेड होने वाले डिसीजेस है में से एक है ट्यूबरक्यूलोसिस, बैक्टीरिया की वजह से होता है। ट्यूबरक्यूलोसिस जिस बंदे को होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा खांसी आती है। ओके, अगर ऐसे बोला जाता है कि अगर आपको 14 डेज के बाद में भी कफिंग हो रही है तो इसका मतलब आपको टीबी हो सकता है। ऐसे पेशेंट को आइसोलेशन में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो डिसीज़ है ये कम्युनिकेबल डिसीज है। इसका डायरेक्ट टच के साथ, मतलब टीबी हुए पर्सन की अपनी, अगर आपने चीज़ें इस्तेमाल की, उसका ब्लैंकेट शेयर किया, उसने जिसमें खाना खाया वो प्लेट शेयर की, तो भी आपको क्या हो सकती है, ये डिसीज हो सकती है टीबी की। लेकिन ये 100% क्यूरेबल डिसीज है। इसके लिए एक डॉट्स ट्रीटमेंट बोला जाता है उसको, जो टीबी के इलाज में की जाती है। उसके बाद में टीबी के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है। ओके,
तो ये वैक्सीनेशन की वजह से, मतलब अगर आप सुटेबल एज में वैक्सीन करा लेते हो तो आपको टीबी का खतरा नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड जो डिसीज है वो है मीजल्स। मीजल्स, दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस, इट इज ऑल्सो स्प्रेड थ्रू एयर, ओके। मीजल्स में वो चेहरे पे ऊपर छोटे छोटे दाने उभर के आते हैं ना, दे आर कॉल्ड एज मीजल्स, ओके। इसके लिए भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है। नेक्स्ट इज चिकन पॉक्स। ये चिकन पॉक्स जो है ना, ये पुराने जमाने की डिसीज है, इसको देवी बोला जाता है। इससे भी चेहरे के ऊपर ऐसे छोटे छोटे दाने उभर के आते थे, जिसकी वजह से चेहरा बदसूरत हो जाता है, और वेरी हाई फीवर इट कॉजेस, ओके। और पहले इससे लोग मरते भी थे, और लोगों को ऐसे लगता था कि चिकन पॉक्स आया मतलब कोई तो भी गॉड उसके ऊपर नाराज है। जब लोगों को पता नहीं था कि ये क्या है, जर्म्स की वजह से होने वाले डिसीजेस है, तब इसको बहुत डेडली डिसीज कंसिडर किया जाता है। एयर और वाटर के थ्रू ये क्या होती है, स्प्रेड होती है। अभी जनरली किसी को नहीं होती, क्योंकि इसके लिए हमें बचपन में ही क्या किया जाता है, वैक्सीनेशन किया जाता है, ओके। नेक्स्ट है पोलियो। पोलियो भी अभी इसको हमें पता है, पोलियो वायरस की वजह से होने वाली डिसीज है ना। इसमें क्या होता है, आपके बॉडी का, आपके पैरों का जो पूरा सेक्शन है, वो सेक्शन इसके वजह से पैरालाइज्ड हो जाता है। वो जो पर्सन है वो चल नहीं सकता। जनरली इसमें हैंड्स और लिम्स आपके क्या होते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये जो डिसीज है ये भी अभी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए पोलियो हटाओ मूवमेंट स्टार्ट की थी, जिसके जरिए संडे को होता है ना 2 बूंद जिंदगी की, ये जो है ये ओरल वैक्सीनेशन इसका दिया जाता है, और वैक्सीनेशन के थ्रू अभी आपको पोलियो के जो पेशेंट्स है पूरे इंडिया में कहीं पे भी नहीं दिखेंगे, ठीक है ना। दिस वॉज ए डेडली डिसीज, पूरी जिंदगी पर्सन को हैंडीकैप रहना पड़ता था। नेक्स्ट है कॉलेरा। कॉलेरा बैक्टीरिया की वजह से स्प्रेड होने वाली डिसीज है। ये वाटर के थ्रू स्प्रेड होती है, फूड के थ्रू भी स्प्रेड होती है, और ये जो है इसमें क्या बोलते हैं हम, डिसेंट्री, उसके बाद में वोमिटिंग, ऐसे इसके क्या है, हाई फीवर, ये इसके साइंस है। अगर आपको कॉलेरा नहीं होने देना चाहिए तो आप क्या करोगे, आपको वाटर कैसे करना पड़ेगा, प्योर और बॉइल करके वाटर यूज करो, और बेस्ट सैनिटेशन हैबिट्स अगर आपको है तो आपको कॉलेरा होने के चांसेस कैसे हैं, कम है, ठीक है। इसके लिए भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइफॉइड। दिस इज ऑल्सो वाटर बॉर्न डिसीज, बैक्टीरिया से होने वाली वाटर बॉर्न डिसीज है। हाई फीवर इसका पहला लक्षण है, ठीक है। देन नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, ऐसे अलग अलग डिसीजेस है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है ये, और वाटर बॉर्न डिसीजेस है, ठीक है। नेक्स्ट जो डिसीज है वो है मलेरिया। मलेरिया इट इज स्प्रेड बाय प्रोटोजोआ, और ये कैरियर्स के थ्रू होती है। कौन से कैरियर्स, मॉस्किटोज, ठीक है। बहुत ठंडी और फीवर, ये इसके क्या है, लक्षण है। ट्रीटमेंट इसके लिए भी अवेलेबल है, ओके। सो दीज आर सम डिसीजेस दैट आर फाउंड इन ह्यूमंस, टीबी, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, उसके बाद में कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस और मलेरिया। आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली, इनमें से कौन कौन सी डिसीजेस एयर, वाटर, फूड और कैरियर बॉर्न है, और दूसरी उसका जो पैथोजन है वो किस कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट डिसीजेस इन ह्यूमन बींग्स। नाउ वी विल सी डिसीजेस इन व्हाट, प्लांट्स। जैसे माइक्रोब्स के डिसीजेस ह्यूमन बींग्स को होते हैं, इन द सेम मैनर दिस डिसीजेस आर कॉज्ड इन प्लांट्स आल्सो। इसका एक एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें तो जो सिट्रस फ्रूट्स है, सिट्रस फ्रूट मतलब क्या, जो आंबट टेस्ट वाले फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि लेमन है, ऑरेंज है ना, इसके बाद में स्वीट लेमन है, ये फ्रूट्स को सिट्रस फ्रूट बोला जाता है। इनमें एक सिट्रस कैंकर
नाम की डिसीज होती है। फ्रूट्स के ऊपर दाग आते हैं इसके वजह से। इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड इट इज ट्रांसफर्ड थ्रू एयर। सिट्रस कैंकर। ओके, डिसीज का नाम याद रखना। सेकंड है वीट के ऊपर होने वाला रस्टिंग, रस्ट ऑफ वीट। ये जो डिसीज है इसमें जो लीव्स होते हैं वीट के उसके ऊपर ब्राउन कलर के दाग गिरते हैं। ये फंगल इन्फेक्शन है, फंगाई की वजह से होता है। एयर्स और सीड्स के थ्रू, मतलब अगर सीड्स अगर फॉल्टी है या सीड्स को अगर रस्ट वाले प्लांट के सीड्स अगर है तो उसकी वजह से भी ये डिसीजेस क्या हो सकते हैं, स्प्रेड हो सकते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। थर्ड एग्जांपल है येलो वेन मोजाइक। दिस डिसीज इज कॉज्ड ऑन भिंडी, ओकरा, ठीक है ना। इंसेक्ट्स के थ्रू ये डिसीज क्या होती है, स्प्रेड होती है। दीज आर सम डिसीजेस फाउंड इन प्लांट। ओके, these are some diseases found in plant. Now next we are going to consider is diseases found in animals. Diseases found in animals. एग्जाम्पल इसके एनिमल के वजह से होने वाले डिसीजेस, सबसे पहले तो कैटल्स जो है, कैटल्स में एंथ्रेक्स नाम की डिसीज होती है। किसके वजह से, जर्म्स के वजह से। एंथ्रेक्स ये जो डिसीज है ये बैक्टीरिया की वजह से स्प्रेड होती है। दूसरी फिर से कैटल्स में ही स्प्रेड होने वाली एक डिसीज है जिसे बोला जाता है फुट एंड माउथ डिसीज। ये भी बैक्टीरिया बॉर्न डिसीज है। ओके, जो पोल्ट्री बर्ड है इनमें फंगल इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन। ओके, these are some example of diseases found in animals, humans and plants. ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका लास्ट टॉपिक इस लेसन का, फूड पॉइजनिंग एंड फूड कंजर्वेशन, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए इसके नोट्स निकालो।